name is Mohammad Mutahir. I am the program coordinator at ETL Online. और ETL Online के बारे में आपको थोड़ा सा बताता चलूँ तो ETL Online actually stands for Empowerment Through Learning, and it is an online tech community that is trying to build a whole tech interface for Pakistan, totally free, जहाँ पे आपके पास resources हो to learn anything you want related to tech. चाहे आप एक टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं या आप स्विच करना चाहते हैं और एनीथिंग दैट यू वांट टू लर्न अबाउट, चाहे वो किसी कोई टूल है दैट यू वांट टू यूज इन योर डिग्री और इन योर थीसिस और इन योर प्रोजेक्ट, यू कैन कम टू ETL ऑनलाइन एंड लर्न अबाउट इट इन एन इंटरैक्टिव एंड कोलैबोरेटिव स्पेस. तो ETL ऑनलाइन का असल मकसद पाकिस्तान को नेक्स्ट IT हब बनाना है, and inshallah will work towards it step by step. Now, without further ado, I'd like to mention कि हमारे साथ सर इरफान बशीर मलिक हमारे आज होस्ट हैं, and he's the speaker. And I'll share the links to ETL online as well, जहाँ पे आपके सोशल मीडिया भी होगा, जहाँ पे आपके रिकॉर्डेड सेशंस भी होंगे, जहाँ पे हमारे हर फ्यूचर और पास्ट पोस्ट आती रहेगी. And then you can check all that is happening right now and what is actually in schedule for the future as well. तो सर इरफान का छोटा सा इंट्रोडक्शन and then we can begin. So most of you already know him, but I'd still like to say that Sir Irfan Bashir Malik is a serial entrepreneur. And when I mean by serial entrepreneur, it just doesn't mean that he's building products. He's actually an architect. As a principal at Acme One and Chief Technology Officer on Demand, he's a seasoned startup mentor. इनकी जो पढ़ाने का अंदाज है and the skill set that he has, the technical grasp that he possesses is beyond comparison, and it cannot be actually put into words. अगर मैं चाहूँ भी तो I cannot actually list how incredible Sir Irfan's teaching style is. And I've witnessed it. We all have witnessed it in the blockchain bootcamp. The successful participation of blockchain bootcamp is actually living proof that Sir Irfan Bashir Malik is a technical leader. So with that start, I'd like to invite you to unmute and then we can start. जी, I've sent you a request to share my screen, and believe me, it was never meant to be. वो कहते हैं ना, कंपनी की मशहूरी वाला, माशाल्लाह जितनी तारीफें कर दी हैं इसने, मुताहिर ने, Mutahir ne. अब Yes. मुझे सीधा होके बैठना पड़ेगा. So I've sent you the request to share my screen, मुताहिर. Yes, sir. It is accepted अच्छा, and you're the co-host as ओके, well. ओके, And I'm just stating the facts over here. अच्छा अच्छा, माशाल्लाह. So let me know when you guys can see my screen. आज की प्रेजेंटेशन उम्मीद है हमारी जो फीमेल पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी. अच्छा जी, सो यू गाइस कैन सी द स्क्रीन. आपको नज़र आ रही है एक PDF फाइल? यस सर, नजर आ रही है. अच्छा जी. यूज़र एक्सपीरियंस या UX आज का हमारा टॉपिक है. एंड ये टॉपिक आज हमने क्यों चुना, क्योंकि through this CTL online initiative we have been involved with the FYP projects for students. हम 2-3 यूनिवर्सिटीज़ के साथ FYP projects के mentorship वगैरह कर रहे हैं. And one thing which struck me was the fact कि typically जिस तरीके से हम भी आज से 25 साल पहले यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में थे, as a student or as a techie, my primary focus was always कि यार C++ आ जाए, C# आ जाए, या फलानी कोई नई टेक्नोलॉजी या टूल सेट को मैं अच्छे तरीके से समझ लूँ. बट नेवर my focus was never on actually solving a problem for any particular user. So और अभी यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो हम FYP कर रहे हैं उसके अंदर जितनी भी हमारी इंटरेक्शन हुई है, बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो कि एक्चुअली यूज़र सेंटर्ड सॉल्यूशंस हैं. दे आर मोर टेक सेंटर्ड सॉल्यूशंस, एंड आई विल ट्राई टू सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेन के दोनों में फ़र्क क्या है एंड हाउ एंड व्हाई building a good user experience is in fact the key for a successful product design. अच्छा, आज हम कोशिश करेंगे सिर्फ और सिर्फ
की कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूज़र एक्सपीरियंस कि यूज़र एक्सपीरियंस है क्या और ये यूज़र इंटरफेस से फ़र्क है। आज अगर सिर्फ इतनी ही हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें तो फिर इंशाल्लाह सब्सीक्वेंट सेशंस में हम विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि यूज़र एक्सपीरियंस क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विद फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट यू यूज़ ऑन अ डेली बेसिस। ये भी हो सकता है कि एज अ फॉलो अप टू दिस सेशन हम इस ग्रुप को कुछ रिसर्च करने को कहें कि यार आप लोग जाएं और रिसर्च करें कि कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो फेल हुई बिकॉज बैड यूज़र एक्सपीरियंस। ठीक है, और कौन सी जो हैं वो बड़ा बेसिक उनकी फंक्शनैलिटी या उनका यूज़ केस तो बड़ा बेसिक है लेकिन बिकॉज ऑफ देयर गुड यूज़र एक्सपीरियंस वो दूसरी कंपेरेबल प्रोडक्ट्स के साथ ज़्यादा मार्केट में सक्सेसफुल नहीं। ठीक है, सो अगेन ये दैट इज़ गोइंग टू बी एन एक्सरसाइज दैट इंशाल्लाह वी विल बी डूइंग एज अ फॉलो अप टू दिस सेशन। आज के दिन मेरा पूरा कोशिश ये होगा कि आप लोग यू गो अवे विद दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन यूज़र एक्सपीरियंस एंड यूआई और एक्चुअल यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो कहते किसको हैं। ठीक है, अच्छा ये जो हमारी मेन स्क्रीन पे भी मैंने डाली हुई है एक तस्वीर गाड़ी की, दैट इज़ वेरी रेलिवेंट। मैं आ जाता हूँ। ये जी विंडशील्ड वाइपर का एक यूज़र स्टोरी है। ठीक है, मैं अभी इसको हाईलाइट कितना नहीं करता। The reason I'm using this example here is because आप लोगों को ये बताना कि जो ये टर्म है ना यूज़र एक्सपीरियंस या जिसको हम यूएक्स कहते हैं, ये ऐसा नहीं है क्योंकि नई टर्म है। हमने मैं 98 में मास्टर्स स्टार्ट किया था इस्लामिक यूनिवर्सिटी से, तो उस वक्त हमने ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के नाम से एक सब्जेक्ट पढ़ा था। वो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, यूज़र एक्सपीरियंस, customer success, customer focused design. These are all different courses or topics which basically mean the same thing. ठीक है, तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें कि जो टर्मिनोलॉजी है ना यूज़र एक्सपीरियंस, दैट वाज वेरी रिसेंटली क्वाइंड। इट वाज आई थिंक एन एप्पल इंजीनियर, उसका नाम मुझे भूल गया है। इफ़ यू लुक एट यूट्यूब एक बाबा जी हैं जो कि यूज़र एक्सपीरियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करते हैं, मुझे नाम उनका भूल गया, बट ही इज़ बेसिकली द पर्सन हु एक्चुअली coined the term user experience, right? लेकिन user experience as fundamental principles of product design has always been there। ठीक है, और उसके अंदर एक the invention of this windshield या windscreen wiper is basically um, a very kind of a interesting example that I wanted to give। यहाँ पे अजान हो रही है, so I'll pause for like 30 seconds। In the meantime आप स्लाइड को जरा पढ़ लीजिएगा सारी। स्लाइड को जरा गौर से पढ़िएगा, ठीक है, एंड देन वील हैव अ डिस्कशन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अजान की ब्रेक खत्म हुई।
अच्छा, so the reason I wanted to discuss this story is that this lady by the name Mary Anderson न्यूयॉर्क के अंदर एक गाड़ी में बैठी हुई थी अपनी, एंड देन शी सॉ अ प्रॉब्लम के वो गाड़ी थी या ट्रॉली थी, डजंट रियली मैटर, बट शी बेसिकली वो वाज ऑल कवर्ड अप। वो अगर आप न्यूयॉर्क वगैरह के वेदर के बारे में पता है तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो जो ट्रॉली या गाड़ी है उसके आगे स्क्रीन के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है। स्टिल रिमेंबर हम न्यू मिशिगन में होते थे तो आपको ना विंड चिल से या ठंड से ना आपके हाथों की पोरें जो है ना वो बिल्कुल फ्रीज हो जाती थी। तो व्हाट शी ऑब्जर्व्ड वाज कि ड्राइवर बेचारा हर थोड़ी देर बाद उतरता है और ट्रॉली की स्क्रीन को किसी डंडे वगैरह से साफ करके एंड देन ही गेट्स बैक। अब उस ड्राइवर का तो ये प्रॉब्लम था ही था, बिकॉज ऑब्वियसली ड्राइवर की अटेंशन डाइवर्ट हो रही थी एंड ही हैड टू सॉर्ट ऑफ स्टेप आउट एंड क्लीन द सॉर्ट ऑफ विंड स्क्रीन देन कम बैक। लेकिन मैरी एंडरसन को भी एक प्रॉब्लम हो रही थी, बल्कि शायद एक से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। कुड यू सॉर्ट ऑफ एनीवन टेक अ गेस कि Yeah, उसको क्या प्रॉब्लम थी? She was getting late to wherever she wanted to go. हाँ, ऑब्वियसली वेरी वैलिड कंसर्न। और बार बार दरवाजा खोलेगा तो ठंड अंदर भी तो आएगी। हाँ माशाल्लाह। सो एक्चुअली उसने बड़ा, जिसे कहते हैं ना, फर वाला गाउन पहना हुआ था एंड शी वाज गेटिंग इरिटेटेड कि यार ये बार बार दरवाजा खोलता है, तो मैं जो इतना गर्म होके बैठी हुई हूँ, ठंडी हवा पड़ती है और मैं सारी ठंडी हो जाती हूँ, राइट? सो शी ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम विद अ यूजर सेंटर्ड डिजाइन के जिसके अंदर ये तमाम के तमाम प्रॉब्लम सेफ्टी का, फोकस का, ड्राइवर का फोकस का और पैसेंजर का, ठीक है? तो उसने कहा कि जी इस सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का जो डिजाइन है वो ऐसा होना चाहिए कि ड्राइवर या कोई पैसेंजर अंदर से बैठ के बाहर विंडशील्ड को साफ कर सके। सो द वेरी फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ विंडशील्ड वाइपर या विंडस्क्रीन वाइपर वाज कि वो अंदर से ना वो एक नॉब को यूं घुमाते थे सर्कुलर मोशन में, तो आगे जो है पाइप वो टू एंड फ्रो करता था। अगर आप गूगल पे उसकी तस्वीरें देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बट दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया दैट आई वांटेड टू सॉर्ट ऑफ पुट इन योर माइंड्स कि यार जब आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ना, आई मीन आई एम assuming that majority of you guys are फ्रॉम सॉफ्टवेयर या आईटी फील्ड, तो ये जहन में रखें कि आप जो चीज़ बना रहे हैं या जो भी टेक डिसीजन कर रहे हैं, इट हैज़ टू फोकस ऑन अ प्रॉब्लम दैट इट सॉल्विंग, ठीक है? यानी कि रिएक्ट मैंने अगर इस्तेमाल करनी है तो अगर मुझे कुछ स्टेट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है या मैंने अगर सिंगल पेज एप्लीकेशन बनानी है तो मैंने सॉल्व मतलब अगर मुझे कोई स्टेट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है या सिंगल पेज एप्लीकेशन के परस्पेक्टिव से कोई मैंने एफिशिएंसी लेके आनी है तो मैं उसको रिएक्ट को इस्तेमाल करूँ, या जस्ट बिकॉज मुझे सिर्फ रिएक्ट आती है तो मैं रिएक्ट इस्तेमाल कर लूँ, राइट? खाली रिएक्ट इस्तेमाल करने से किसी यूजर का कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, ये जेन में रख लें, ठीक है? अच्छा, आगे चलते हैं। The next example is even more interesting. The kitchen triangle. अब लिली एंड गिलबर्ट, हर मैंने बताया था कि खवातीन इस सेशन को बड़ा एंजॉय करेंगी क्योंकि दोनों इनिशियल एग्जांपल्स फीमेल एंटरप्रेन्योर्स की हैं, इन्वेंटर्स की हैं माशाल्लाह। सो लिलियन एक साइकोलॉजिस्ट थी और एफिशिएंसी एक्सपर्ट थी। अब पाकिस्तान में बैठे हुए तो हमें इस टर्मिनोलॉजी का पता ही नहीं है कि एफिशिएंसी एक्सपर्ट्स होते क्या हैं, बट बिलीव मी किसी भी बिजनेस प्रोसेस को या किसी भी आपके काम को एफिशिएंटली कैसे करना है उसके बकायदा एक्सपर्टीज डेवलप करते हैं, राइट? सो उसने क्या देखा कि जी किचन्स जो हैं ना वो पूरली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मूवमेंट होती है, ठीक है? आज अपने अपने किचन्स में अगर आप देख लें तो आपको ये नज़र आएगा, ख़ुसूसन हमारे देहातों में आगे पीछे मूवमेंट का। तो उसने कहा कि अच्छा जी, अगेन आई यूज द सेम टर्मिनोलॉजी दैट आई यूज्ड इन द लास्ट स्लाइड, कि प्रॉब्लम क्या था, यूजर की नीड क्या थी, ठीक है? फिर उसने सोल्यूशन क्या डिजाइन किया और उसमें जो कोर यूएक्स का प्रिंसिपल था वो क्या अप्लाई हुआ, ठीक है? सब हम एक ऐसे करते हैं दोबारा कि उसने प्रॉब्लम क्या ऑब्जर्व किया और यूजर की नीड क्या थी, यानी कि एज अ हाउस होल्ड लेडी एनीवन हु इज यूजिंग द किचन, नीड क्या है कि एक ऐसा किचन का लेआउट हो कि जहां पर स्टेप्स टू परफॉर्म एनी फंक्शन
आर रिड्यूस्ड, यानी कि आप एक वक्त अगर आप देखें तो घर में खवातीन खाना भी माशाल्लाह पका रही होती हैं, और कपड़े वो सॉरी सिंक के अंदर बर्तन भी धुल रहे होते हैं। और मेरी तो अपनी बेटी माँ के साथ खड़ी होके वो छोटे से बेलने के साथ वो रोटी बना रही होती है, वो बेटा वाला मेरा छोटा वो स्लैब के ऊपर बैठा होता है, राइट। सो अगर किचन का डिज़ाइन एक ऐसा होगा कि जो आपकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है ना, तो फिर दैट बेसिकली एड्स टू एंग्जाइटी। और जो आपने बहुत काम जल्दी में करना है, लाइक आपने पूरा का पूरा घर के लिए अगर खाना बनाना है जो कि घंटे में पकता है, और अगर आपका लेआउट किचन का अच्छा नहीं होगा तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो दिस एफिशिएंसी एक्सपर्ट एंड साइकोलॉजिस्ट केम अप विद दिस आइडिया ऑफ डिफाइनिंग अ किचन ट्रायंगल। अब इसको ज़रा गौर से देखते हैं। हमारे आजकल के किचन्स का भी लेआउट और मोर और लेस यही है जो कि आपको एक वेस्टर्न किचन में मिलता है। सेंटर में आपको ये जिसको ये वाली तस्वीर है HOB वाले जिसको कह रहे हैं वो स्टोव वगैरह हैं आपके, राइट, यानी कि मेन कुकिंग एरिया आपका। अमूमन एक साइड पे लेफ्ट पे या राइट पे आपके सिंक होगा, ठीक है, और एक दूसरी साइड पे आपके फ्रिज होगा। अब फ्रॉम अ साइकोलॉजी एंड एफिशिएंसी एक्सपर्टीज परस्पेक्टिव अगर आप देखें तो वो यहाँ पर उसने ना दो ट्रायंगल बनाए हुए हैं। पहला ट्रायंगल के जो हॉब सिंक और फ्रिज है, ठीक है, उसके दरमियान आपका मिनिमल डिस्टेंस है हॉब और सिंक के दरमियान कि आपकी जो यूटेंसिल्स आपने पकाने के लिए इस्तेमाल किए वो सिंक तक ले जाने के लिए मिनिमम मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके से जो स्नैक वगैरह है जो कि किचन फ्रिज में पड़ा हुआ है, ठीक है, उस तक की आपकी अप्रोच जो है फ्रॉम दी हॉब वो मिनिमल होनी चाहिए। एट द सेम टाइम एट द सेम टाइम अगर आप इसका सेकंड ट्रायंगल देखें जो कि ग्रीन वाला है, वो ये है कि सिंक के साथ ही है डिश वॉशर, जहां पर आपका आ, मतलब डिश वॉशर और सिंक तो जरूर क्लीनिंग के लिए ही इस्तेमाल होते हैं दोनों, लेकिन कुछ जगहों पर कुछ सामान आप डिश वॉशर से ढूंढते हैं, कुछ छोटा मोटा आप सिंक से धो देते हैं। एंड देन जो स्टोरेज है, राइट, वो भी एक अप्रोचेबल डिस्टेंस पे होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टोरेज और फ्रिज को अगर आप ऊपर नीचे भी कर दें तो मोर और लेस सिमिलर ट्रायंगल्स ही बनेंगे, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ यूजर सेंट्रिक डिजाइन। अभी देखें मैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर मैं किसी की तरफ आया ही नहीं हूँ, एक प्रोसेस के सामने हमने हमने जो पहली एग्जांपल देखी थी वो एक हार्डवेयर प्रोडक्ट थी, ठीक है। अब हमारी जो सेकंड एग्जांपल है ये एक प्रोसेस है। यहां तक समझ में आ रही है आपको? यस सर। हाँ, नहीं आपको तो समझ आ रही है मुताहिर, बट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि बच्चों को समझ आ रही है कि यार व्हेन वी टॉक अबाउट यूजर एक्सपीरियंस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली कि जी सॉफ्टवेयर में UX क्या चीज़ होती है या UI क्या चीज़ होती है। बेसिकली अगर आप यूजर एक्सपीरियंस को समझना चाहते हैं तो वो ये समझ लें कि इट हैज़ एवरीथिंग टू डू विद व्हाट द यूजर इज ट्राइंग टू डू इन इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। हो सकता है वो कोई भी नमाज ये पढ़ते हुए मेरा यूजर डिजाइनिंग एक्सपीरियंस से है। सिमिलर है कि उससे थोड़ा सा डिफरेंट है? ग्राफिक डिजाइनिंग से सिमिलर है कि हाँ मैं भी आता हूँ उसकी प्रिंसिपल्स तरफ। डिफरेंट है? ये डिफरेंट है ना कि मैं भी आता हूँ उसकी तरफ। अभी हमने ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ नहीं जाना और हमने यूजर इंटरफेस के प्रिंसिपल्स की तरफ नहीं जाना है। अगर आप वो कहते हैं ना लर्निंग का सबसे पहला असूल ये है कि आपने जो चीज़ें पहले फर्ज करें गलत लर्न की हुई है ना उसको अनलर्न करना है, ठीक है। सो अभी आप एक क्लीन स्लेट से आए, आप भूल जाएं कि यूजर इंटरफेस नाम की कोई चीज़ है, ग्राफिक डिजाइन नाम की कोई चीज़ है। मैंने अभी आपको दो एग्जांपल्स दी हैं। मैंने पहली एग्जांपल ये वाली दी, ठीक है, इसके अंदर भी अभी ग्राफिक डिजाइन का कोई दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। एक हार्डवेयर प्रोडक्ट इजाद की गई एंड आई थिंक दिस लेडी मैरी एंडरसन, उसने सिर्फ जिंदगी में एक ही प्रोडक्ट ये वाली इजाद की है। शी वाज जस्ट एन ऑर्डिनरी लेडी, राइट, एंड शी डजंट हैव एनी अदर इन्वेंशंस, कोई साइंटिस्ट नहीं थी। एंड देन द सेकंड इन्वेंशन और द सेकंड सॉर्ट ऑफ thing that I've mentioned here is basically a process. और प्रोसेस इसलिए मैंने एग्जांपल में दिया है बिकॉज
सॉफ्टवेयर के अंदर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू डू या बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, इस तरह की आपको टर्मिनोलॉजी इस बाद में सुनने को मिलेंगी, जो कि काम को एफिशिएंटली करने का एक तरीका है। आपको पता है हर सॉफ्टवेयर जो आप बनाते हैं उसमें एक लॉगिन स्क्रीन होती है, एक रजिस्ट्रेशन की स्क्रीन होती है, और कुछ डैशबोर्ड पेजेस होते हैं, व्हाट नॉट, लाइक पिकअप लाइक 100 एप्स, तकरीबन 80 या 90% एप्स का यही फ्लो होगा, शायद 95% एप्स का यही फ्लो होगा। तो हम उन चीज़ों पे अभी हम बाद में आएंगे। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो टर्मिनोलॉजी है ये हमारे जहनों में गुंद जाए कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूजर एक्सपीरियंस या यूजर सेंट्रिक डिजाइन, तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं। अब इस यूजर सेंट्रिक डिजाइन को, आई थिंक इट वाज हमना विच वाज टॉकिंग, तो अगर हमना ले लेना, तो अब आपके किचन का कलर जो है ना, जिसको आप ग्राफिक डिजाइन कहते हैं, वो यहाँ पर एक मैंने तस्वीर में वाइट कलर का है। अब इसमें मार्बल का कलर, नीचे उसने वुडन फ्लोर लगाया हुआ है, राइट। वुडन फ्लोर अगर मैं मार्बल से रिप्लेस करूंगा तो उसकी एस्थेटिक्स में तो डेफिनेटली चेंज आएगा, लेकिन क्या मार्बल से रिप्लेस करने से अगर यूजर स्लिप होगा तो दैट इज अ यूजर एक्सपीरियंस रिलेटेड थिंग। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ऑल फैक्टर्स या ऑल थिंग्स कंसिडर्ड, मार्बल फ्लोर और वुडन फ्लोर दोनों का यूजर एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ यू वॉकिंग ऑन द फ्लोर इज द सेम, तो फिर एस्थेटिकली शायद मार्बल फ्लोर ज्यादा अच्छा लगे किसी को, और किसी को वुडन फ्लोर ज्यादा अच्छा लगे। ये एनालॉजी आपको समझ में आई है? सो ये जो हम ना, ये समझ में आई है आपको? यस सर, आ गया। आई हाँ, डिफरेंस आई सर। रिपीट, थैंक यू आई सो मच। रिपीट, ये किचन है, किचन के अंदर ये वुडन फ्लोर लगा हुआ है, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस एज अ लेडी और एज अ जेंटलमैन, आजकल तो मर्द ज़्यादा अच्छे कुक होते हैं, सॉरी फॉर सेइंग दिस, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि माय एक्सपीरियंस एज अ यूजर ऑफ अ किचन is similar for a wooden floor and for a marble floor, तो then the only thing which matters is कि यार मार्बल ज्यादा अच्छा लग रहा है या वुडन फ्लोर ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर मार्बल बहुत अच्छा लग रहा है, यू कैन सॉर्ट ऑफ हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाइट कैबिनेट्स एंड ब्लैक, अच्छा खूबसूरत वाला मार्बल, लेकिन मार्बल स्लिप करता है, तो विजुअली या एस्थेटिकली तो वो बड़ा प्लीजिंग लगेगा। लेकिन आपके बंदे अगर किचन में, क्योंकि आपने किचन में काम करना है, पानी गिरना है, घी गिरना है, और बच्चे अगर स्लिप हो रहे हैं या आप स्लिप हो रहे हैं, तो आपका जो यूजर एक्सपीरियंस है वो खराब हो रहा है। ठीक है। यस सर, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इस इसकी समझ में आई है कि जो प्रोसेस के अंदर यूजर एक्सपीरियंस, ये जो दो ट्रायंगल्स के थ्रू समझाने की कोशिश की है, क्योंकि ये हमारी सॉफ्टवेयर में भी अप्लाई होता है, जिसको आप यूजर यूजर फ्लोज कहते हैं ना, कि यूजर एक जगह पे खड़ा है, एक स्क्रीन पे खड़ा है, दूसरी स्क्रीन पे कैसे जाएगा, और फिर वहां से तीसरी स्क्रीन पे कैसे जाएगा। तो इस तरह की जो यूजर स्टोरीज हैं हमें सॉफ्टवेयर में भी बनानी पड़ती हैं। सो इट्स फंडामेंटल दैट यू अंडरस्टैंड दिस स्लाइड। और मैं दो तीन और बंदों को चाहूंगा कि मुझे वो क्या कहना चाहिए, को फीडबैक दें इसके ऊपर अभी। लेट्स ये सी कि सर चैट में क्या फिर क्या अभी कमेंट्स आए हैं। अच्छा जी, हेलो हेलो के मैसेजेस आ रहे हैं सारे। अच्छा, हाँ, और मे बी द नेक्स्ट टाइम नीचे एक कॉस्ट पॉइंट बी द डिसाइसिव पॉइंट फॉर फ्लोरिंग। हाँ, जकिया ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जनरेट किया, एग्जैक्टली, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। गुड जॉब जकिया। के जी, मेरा एक्सपीरियंस इस चीज पे भी तो डिपेंड करता है ना, मैं बंदा अमीर हूँ कि गरीब हूँ, राइट। और अगर मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता वुडन पैलेस, राइट, और हो सकता है मेरे पास मार्बल की भी पैसे ना हो, तो मैं, हो सकता है मेरा फ्लोर कच्चा हो। आई स्टिल रिमेम्बर हमारे गांव में जब हम छोटे होते थे, बारिश होती थी तो किचन का रास्ता जो था सारा कच्चा होता था, और हमने वहां पर ईंटें लगाई होती थी अपने पुराने गांव वाले घर में, राइट। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन कि यार इस चीज पे भी तो डिपेंड करता है ना, कि जो बंदा या जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो उस मार्बल को या वो जो भी आप वुडन फ्लोर प्रपोज कर रहे हैं उसको अफोर्ड भी कर सकता है कि नहीं। एक्सीलेंट पॉइंट। और क्लीनलीनेस टू, जी जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल
अगेन आई थिंक वी अंडरस्टैंड द पॉइंट नाउ, एंड आई थिंक अगर ये पॉइंट समझ में आ गया ना तो फिर हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। आई थिंक हमें प्रेजेंटेशन यहीं पे खत्म कर देनी चाहिए, बिकॉज आई रियली वांटेड टू ब्रिंग होम दिस पॉइंट कि अब अगर आपको इस चीज़ की समझ में आ गई है तो यूजर एक्सपीरियंस और यूजर इंटरफेस में फर्क आप समझ लेंगे। आगे चलते हैं। सो जो हमने पहले एक्सरसाइज की थी, ये वाली द किचन ट्रायंगल वाली, सॉरी, इसमें ना हमने सोल्यूशन डिजाइंड और द कोर यूएक्स प्रिंसिपल उसको भी आइडेंटिफाई किया था, एंड आई डिलिबरेटली लेफ्ट इट वॉइड हेयर। अब अगर कोई मुझे कहे कि यार बेस्ड अपॉन द डिस्कशन वे हैड, तो किचन ट्रायंगल में हमने जो सोल्यूशन डिजाइन किया है वो और इसमें कोर यूएक्स प्रिंसिपल क्या है? एनीवन? व्हाट इज द what is the core UX principle, या हमने सोल्यूशन क्या डिजाइन किया है? एनी रैंडम गैस, आई मीन डजंट हैव टू बी एक्यूरेट। मैंने भी चैट जीपीटी से ही उठाया हुआ, टेंशन ना लें। आई थिंक इट्स लाइक कि यूजर की ईज हो, यूजर के लिए आसान हो चीजें एक्सेस करना, एंड जी वो जी। उसको कहते हैं कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इंटरफेस हो। हाँ जी। अगर कोई लेट्स सपोज लेमैन भी हो तो ही इज इजीली एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट काइंड ऑफ इनपुट आई हैव टू डू। जी जी। हाँ, थैंक यू वेरी मच। बेहतरीन। सो किचन ट्रायंगल के अंदर मुझे साइकोलॉजिस्ट खातून थी, व्हाट शी डिड वाज थ्रू द स्टडी ऑफ मोशन। सबसे पहले उसने ऑब्जर्व किया कि जी, एंड बेसिकली शी ऑब्जर्व्ड हर चिल्ड्रन मेकिंग शॉर्ट केक्स। अब ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब हम सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं तो हमारी जिसको कहते हैं ना यूजेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, इसके ऊपर बिल्कुल कोई रिसर्च नहीं होती। एंड आई कैन टेल यू थ्रू माय एक्सपीरियंस रिसेंटली, जो हम एफआईपी के ऊपर भी आजकल बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, बिल्कुल इसके ऊपर फोकस है ही नहीं। देयर इज एन प्रोजेक्ट दैट आई एम डूइंग विद कोहॉर्ट, और वो एक ना साइंटिफिक सिमुलेटर बना रहे हैं, एंड आई मेंशन देयर नेम बिकॉज दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, बट आई मीन आई डोंट वांट टू सॉर्ट ऑफ पुट देम ऑन द स्पॉट हियर। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा था कि यार आपका, अच्छा बेसिकली एड टेक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट क्या करता है कि थ्रू द यूज ऑफ एआर एंड वीआर बच्चों को फिजिक्स और मैथ और इस तरह के ना कॉन्सेप्ट समझा रहा है। एंड मेरी उससे उनके साथ 2 या 3 मीटिंग्स हुई हैं, और मैंने उनको सबसे हमेशा ये पूछा है कि यार व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व। आपको सबसे पहले इस चीज पे रिसर्च करना चाहिए कि मैथमेटिक्स या फिजिक्स पढ़ते हुए बच्चों का प्रॉब्लम क्या है, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उनको समझ नहीं आती। Just using a VR based experience is not going to solve your problem. As a developer or as a techie, it will give you some, वो क्या डोपामाइन या जो भी इफेक्ट होता है जिससे यू फील सॉर्ट ऑफ वेरी प्लेजेंट, राइट। आपको तो तसल्ली तो मिलेगी कि हाँ यार मैंने ना एक AR VR बेस्ड एक प्रोडक्ट बनाई है, बट इज इट सॉल्विंग anyone's problem unless you study कि यार बच्चों को फिजिक्स पढ़ने में प्रॉब्लम क्या है। और जब आप वो उनका बिहेवियर मॉनिटर करेंगे तो फिर आप उसका कोई ना कोई सोल्यूशन अपनी जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके अंदर उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। ठीक है। अगेन मैं आई हैव अ स्लाइड डेडिकेटेड ऑन द फैक्ट कि हमारे जो यूनिवर्सिटीज के अंदर या एकेडेमिया के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें यूएक्स के ऊपर इतना फोकस क्यों नहीं होता। आई थिंक सबसे आखिरी स्लाइड वही है, बट आई एम ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ बिल्ड अप ऑन माय आर्गुमेंट, ताकि हमें पता हो कि हम एग्जैक्टली डिस्कस यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है। सो उसने क्या किया, उसने जब उनकी मोशन को या उनकी जिस तरीके से बच्चे उसके किचन में मूव कर रहे थे व्हेन शी वाज मेकिंग अ शॉर्ट केक, तो उसने दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अ गोल्डन ट्रायंगल बनाया। और अब अगर आप देखें लाहौर में, पिंडी, इस्लामाबाद में, या जितने भी आप कह लें कि वेस्टर्न स्टाइल के घर, हमारे कुछ एक पुराना स्टाइल के घरों में भी अगर आप देखें तो सिमिलर प्रिंसिपल एट प्ले है। लेकिन अब तो जितने भी बड़े घर बनते हैं
मॉडर्न घर बनते हैं उनके अंदर ये यू शेप्ड या ये ट्रायंगल शेप्ड किचन ही सेटअप हुआ होता है। ठीक है जी, आगे चलें। इसमें कोर यूएक्स प्रिंसिपल इज़ वेरी सिंपल कि आपने प्रोसेस और एनवायरनमेंट को एफिशिएंटली डिज़ाइन करना है। अच्छा, अब सबसे पहले ना आगे चलने से पहले वो जो एक हमना का शायद कमेंट था ग्राफिक डिज़ाइन, उसको ज़रा बीच बीच में से हटा लेते हैं कि यार यूएक्स को ज़रा और समझने से पहले ये समझ लें कि यूज़र इंटरफेस क्या है, ग्राफिक डिज़ाइन और ये सारी चीज़ें, ये क्या चीज़ें। सो एनीथिंग विच रिलेट्स टू कलर, क्योंकि कलर बड़ा सब्जेक्टिव है, कुछ लोग तो कलर ब्लाइंड भी होते हैं, ठीक है। और कुछ लोग जो हैं, आई थिंक मुगीस का हाथ इज रेज्ड। जी मुगीस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मुगीस। अच्छा सर, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड ही है, एक्सेसिबिलिटी से। तो हम्म वन व्हेन वी आर मेकिंग समथिंग, तो हम एज अ डेवलपर या एज अ क्रिएटर या एज अ मेकर हम सिर्फ अजम्पशन ले सकते हैं कि व्हाट यूजर्स रियली वांट। तो पॉइंट ये है हम्म कि 8 अरब की आबादी है, तो 8 अरब की आबादी में हम एक पब्लिक वेबसाइट बना रहे हैं, पब्लिक ऐप बना रहे हैं, तो हम उसमें सारी डाइवर्सिबिलिटीज को कैसे कवर करेंगे एज अ डेवलपर? क्योंकि हम घर का दरवाजा खड़का कर आते हैं कि व्हाट यू वांट, तो इस तरह तो नहीं ना कर सकते। ऐसा नहीं, हाँ ऐसा नहीं है, मैं आता हूँ इसकी तरफ। सो मुगीस हमारे माशाल्लाह इन्होंने एक्सेसिबिलिटी के ऊपर एक बड़े ज़बरदस्त सेशन किया है, और मैं एग्जैक्टली यही कह रहा था। मुगीस का विजुअल इम्पेयरमेंट है। सो देर आर पीपल के जिनको कलर्स का तो पता ही नहीं है, राइट। मे बी दे आर कलर ब्लाइंड और दे आर लीगली नॉट एबल टू सॉर्ट ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन द कलर्स, राइट। इसी तरीके से टाइपोग्राफी, ये जो आपको सेकंड चीज़ नज़र आ रही है जिसको आप फॉन्ट्स वगैरह भी कहते हैं, ठीक है। कैलिब्री फॉन्ट बड़े मशहूर हुए थे किसी ज़माने में। तो अगेन अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। कुछ लोगों ने घर के बाहर बड़ा बड़ा हाजा मिन फजले रब्बी लिखा होता है, ठीक है ना। कुछ लोगों ने फूलों की क्यारियां लगाई होती हैं बाहर में, राइट। इट्स ऑल वेरी सब्जेक्टिव कि आप कौन सा कलर इस्तेमाल करना चाह रहे हो, किस फॉन्ट में हाजा मिन फजले रब्बी आपने लिखवाना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरीके से लेआउट, आपकी साइट का लेआउट क्या है। टिपिकली जब हमने डेवलपमेंट स्टार्ट की थी तो ऑलमोस्ट एवरी वेबसाइट हैड अ साइड बार। एक ऊपर हेडर होता था, नीचे एक फुटर होता था। अगर आप आज से 15-20 साल पुरानी वेबसाइट्स खोल के देखें तो मोर और लेस यही आपको ये जो बॉटम राइट पे एक लेआउट सा नज़र आ रहा है ना, यही लेआउट नज़र आ रहा होगा। आजकल की वेबसाइट ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा एडवांस्ड है, लेकिन अगर आप पुरानी वेबसाइट पे देखें, आप पुराने याहू के पेजेस खोले तो इट वाज वेरी क्लटर्ड इंटरफेस। हर चीज़ आपको ऊपर ही मिलती थी इन डिफरेंट कलर्स। आजकल ज़रा थोड़ा सा वो खसूसन वेबसाइट्स वगैरह के ऊपर कंटेंट को थोड़ा सा फोकस करने वाला जो है ट्रेंड है कि की पॉइंट्स हाईलाइट हों, मिनिमलिस्ट किस्म की इंटरेक्शंस हों। अगेन वो एक टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है। आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट के जहाँ पर भी लेआउट की बात होगी, जहाँ पे भी कलर्स की बात होगी, जहाँ पर भी टाइपोग्राफी की बात होगी, आइकॉन्स कौन से इस्तेमाल करने हैं, बटन्स कौन से इस्तेमाल करने हैं, और एस्थेटिक्स ऑब्वियसली ये, क्योंकि ये हर चीज़ वो है यूज़र स्पेसिफिक है। अच्छा, मेरा एक दोस्त है, वो उसके मैं मजाक उड़ाता हूँ, कहता है यार कि मैं जब भी घर से अपने कपड़े खरीदने जाता हूँ ना, वापस आता हूँ, बैग खोलता हूँ तो बीच में से नीले रंग की शर्ट निकलती है। बिकॉज उसके लिए वो जब भी जाता है तो उसको सिर्फ नीले रंग की पसंद आ रहा होता है, ठीक है। एंड यू मे हैव पीपल के जो कभी शायद नीला रंग पसंद ही ना करें। ये बहुत अच्छी बात की ये है कि परसोनास वाली आइडेंटिफिकेशन, जी ये सारा का सारा उस प्रोसेस का हिस्सा होता है। बट अगेन अगर आपने ये 4-5 चीज़ें अच्छे तरीके से समझ ली हैं, जिसको एस्थेटिक्स ने हमने कहा, ग्राफिक डिज़ाइन वगैरह कह रही है, ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अब विद दिस इन प्लेस, विद दिस अंडरस्टैंडिंग इन प्लेस, अब हम फिर दोबारा आते हैं कि फिर यूजर एक्सपीरियंस जो है उसकी क्या डेफिनेशन है। अब ये एक विजुअल मैंने बड़ा सोच समझ के लगाया है इधर, और ये मैं कह सकता हूँ सोच समझ के लगाया क्योंकि आप लोगों को क्या पता लगना, राइट।
अब अगर इसके अंदर देखें, एक ऐप है कि जो कि मुझे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन दे रही है, विच मीन्स कि एक दफा मैंने अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया, राइट, तो अब मुझे बार बार यूजर नेम पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। विच मीन्स कि अगर मेरी एप्लीकेशन वो फ्रीक्वेंटली यूज हो रही है, तो जैसे फर्ज करो मेरी कोई फिनटेक ऐप है, यानी कि सादा पे की मैं ऐप इस द्वारा इस्तेमाल करता हूँ पेमेंट्स वगैरह, तो दो काम कर रही है। एक तो यार मेरा ईज ऑफ यूज, यानी कि मेरे एक्सपीरियंस के अंदर मुझे ये फायदा है कि यार जल्दी लॉगिन हो रहा हूँ, दूसरा सिक्योरिटी भी है, राइट। मतलब अगर मेरा कोई पासवर्ड चोरी भी कर लेता है, लेकिन अगर मैंने फिंगरप्रिंट इनेबल किया हुआ है उसको, तो जब तक वो फिंगरप्रिंट नहीं लगाएगा तब तक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं होती। मोस्ट बैंकिंग एप्स बेसिकली डू नॉट, उन वो आपको ना मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाती हैं कि जी आपने अगर पासवर्ड लगाया भी हुआ है, तो अगर आपने अपना फिंगरप्रिंट नहीं देंगे तो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगी, राइट। तो ये जो पूरे का पूरे अगर आप विजुअल को देखो, तो इसके अंदर कलर से ज्यादा जो इस बंदे का एक हैप्पी एक्सपीरियंस है ना, वो हाईलाइटेड है। शील्ड भी लगी हुई है कि यार उसको पता है कि मेरी एप्लीकेशन सिक्योर है, ठीक है, ईज ऑफ मेरे लिए ज़्यादा एक्सेसिबल भी है, सिक्योर भी है, मैं इसके अंदर मेरी जो मूवमेंट है वो भी आसान है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, सो द यूजर एक्सपीरियंस इज ऑल अबाउट मेकिंग द कस्टमर हैप्पी, ठीक है। और जो हैप्पीनेस है वो कलर्स, फॉन्ट और क्या नाम है, लेआउट इज जस्ट वन कंपोनेंट ऑफ दैट एंटायर एक्सपीरियंस। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं। अब हम एक्सपीरियंस की अगर एक होलिस्टिक सी डेफिनेशन देख लें, तो वो ये है कि द ओवरऑल फीलिंग फ्रॉम द यूजर्स एंटायर जर्नी विद अ प्रोडक्ट और सर्विस। अब ये बड़ी क्रिटिकल चीज़ है कि जो यूजर एक्सपीरियंस है, मैं एक कंपनी चला रहा हूँ सॉफ्टवेयर की, ठीक है, तो मेरी जो कंपनी के साथ उस बंदे का एक्सपीरियंस है, या अगर कोई मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ उसके साथ कोई एक्सपीरियंस है, वो कैसा है। ठीक है, अभी हम मैं यूरोप गया तो एक सिख भाई था, इसके साथ ना एफल टावर के साथ खड़ा हुआ, सिंगाड़े, उसको चेस्टनट कहते हैं, लेकिन आप कह लें कि यूरोपियन सिंगाड़े बेच रहा था। तो वी वी रियली वांटेड टू सॉर्ट ऑफ ईट दैट, तो पीछे एक वेंडर के पास हम गए, तो हमारे पास कैश नहीं था। तो उसने कहा कि नहीं यार, अगर आपके पास कैश नहीं है तो मैं आपको दे नहीं सकता। तो वो एक सिख भाई था, वो खड़ा हुआ था, कहना जी मेरे को है वो ये टैप वाला ना, एंड यू कैन टैप योर कार्ड एंड आई, मतलब वो $5 की पेमेंट थी। सच अ डिजाइटफुल एक्सपीरियंस फॉर अस, बिकॉज वो ठंड के अंदर हमें उस टाइम बड़ी शदीद तलब हो रही थी उसकी चेस्टनट खाने की, और बाकी किसी वेंडर के पास वो मशीन नहीं थी, इसके पास फोन के ऊपर ही वो टैप अनेबल्ड था, राइट। सो आपकी कोई प्रोडक्ट है या आपकी कोई सर्विस है, उसकी जो ओवरऑल फीलिंग है, ठीक है, वो कैसी है इसके अंदर अब जो मुगीस बात कर रहा था वो भी शामिल है कि ना सिर्फ यूजर इंटरफेस के जिसको आप ग्राफिक डिजाइन कहते हैं, बल्कि यूजेबिलिटी। और ये यूजेबिलिटी जो है एक बड़ा क्रिटिकल वर्ड है, इसको अगर आप एक्सपैंड करते जाएं तो प्याज की तहों की तरह ना इसमें से लेयर्स निकलती जाती हैं, बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ connotations एंड लॉट ऑफ मीनिंग्स, इमोशंस एसोसिएटेड विद इट। इसके अंदर मैं भूल गया वो डालना एक्सेसिबिलिटी, जो कि मुगीस ने जिस पे सेशन किया था कि यार अगर कोई बंदा थोड़ा सा नॉर्मल यूजर की तरह इंटरेक्ट नहीं कर सकता, तो कितनी एक्सेसिबल है विद पीपल विद डिफरेंट एंड डाइवर्स बैकग्राउंड्स के उसको कर सकें। और एट द एंड ऑफ द डे ब्रांड परसेप्शन ये इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि यार अ, मेरे साथ एक वैल्यू एसोसिएट की जाए माई एप्पल का, और अब तो खैर गूगल का भी काफ़ी हद तक, लेकिन एप्पल का की डिस्टिंक्शन, हम ना मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, लेकिन एप्पल का की डिस्टिंक्शन जो है फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स वो है ही ये कि एप्पल के कस्टमर्स लॉयल, उनको पता है कि यार एप्पल की जो प्रोडक्ट है ना उसका यूजर एक्सपीरियंस टॉप नॉच होना है। एम आई करेक्ट? Although Samsung and other
प्रोडक्ट्स आर कैचिंग अप, लेकिन एप्पल का की डिफरेंशिएटर ही हमेशा रहा कि यार इसका यूजर एक्सपीरियंस टॉप नॉच, सो मच सो कि एक जमाना था बल्कि अभी भी इसका चार्जर फर्क है, टाइप सी से ज्यादा भी चार्ज हो जाता है कि नहीं, लेकिन इसका चार्जर फर्क, इसका गैजेट्स फर्क, लेकिन एप्पल के यूजर रहते थे। सो जो ब्रांड परसेप्शन है वो राइट फ्रॉम द डे वन बनती है। ऐसा नहीं होता कि आप कहें कि यार अच्छा मैं सॉफ्टवेयर बना लूं और लोग इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, मेरा प्रोजेक्ट जो है ना, मैं तो दुनिया की एक बड़ी कोई तोप चीज बना रहा हूँ टेक्निकल, तो लोग तो खुद ब खुद इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। जो ब्रांड परसेप्शन आप क्रिएट करना चाह रहे हो वो राइट फ्रॉम द डे वन आपको अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विस या जो भी आप चीज ऑफर कर रहे हैं उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करनी है। और ये ऑनेस्टली यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के अंदर बच्चों को, चूंकि हमारी पढ़ाई सिर्फ टेक फोकस्ड होती है, हम बिल्कुल भी नहीं बनाते। यही वजह है कि आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान के अंदर से कभी कोई इंटरनेशनल लेवल की ब्रांड नहीं निकली? सर्विस के जूते, लेदर इंडस्ट्री के, आई मीन सर्विस प्रॉब्ली नॉट अ वेरी गुड एग्जांपल, लेकिन दे हैव बीन मैन्युफैक्चरिंग शूज फॉर लाइक 40-50 years नाउ, ब्रांड नहीं बन सका। जितने भी ब्रांड्स हैं वो बाहर के ही हैं जो कि यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट्स आके बेचते हैं। एंड आई थिंक उसके अंदर वन ऑफ द क्रिटिकल एलिमेंट्स इज द लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ व्हाट ब्रांड परसेप्शन इज, कि हमने ब्रांड बिल्ड कैसे करना है, हम लोगों को आइडिया ही नहीं है। सॉफ्टवेयर में भी यही चीज़ है। नेम वन कंपनी इन पाकिस्तान कि जिसका कोई सॉफ्टवेयर है जिसको कोई ब्रांड इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हो, कोई नहीं है। हम सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, बड़े अच्छे सॉफ्टवेयर बनाते हैं, पाकिस्तानियों ने बड़े अच्छे सॉफ्टवेयर भी बनाए हुए हैं, प्रोडक्ट्स भी बनाई हुई हैं, ब्रांड कोई नहीं है। ठीक है जी। अच्छा खैर, थोड़ा सा ना प्रोलॉन्ग सा हो गया, बट आई होप इट वाज वर्थ इट। अच्छा जी, फोकसेस ऑन मीटिंग यूजर्स नीड इफेक्टिवली एंड एंजॉयबली। एक लड़के ने यहाँ पर ना उसका मेंशन किया था यूजर पर्सोना से। अभी हम सारी थ्योरी पढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में जब हम पढ़ेंगे ना कि यूजर एक्सपीरियंस को डिजाइन करते कैसे हैं, तो आपको सबसे पहले ये जो यूजर पर्सोनाज हैं कि यार जरूरी नहीं है आपका यूजर एक ही हो। मैरी एंडरसन वाली एग्जांपल में जहाँ पे उसने विंडशील्ड वाइपर इन्वेंट किया था, उसने अपने आप को एज अ फर्स्ट हैंड यूजर ऑफ दैट इन्वेंशन शामिल किया। उसने वो इन्वेंशन खाली ड्राइवर के लिए नहीं बनाई, उसने अपने लिए भी बनाई। उसने ये सोचा कि यार जो पीछे सवारियां बैठी हुई हैं वो भी उतना ही इम्पैक्ट हो रही हैं। तो एज अ ड्राइवर ऑफ दैट ट्रॉली और दैट कार, आपका जो यूजर नीड है या आपका जो पर्सोना है वो फर्क है, और एज अ सवारी जो आप पीछे बैठी हुई है आपका पर्सोना फर्क है। ये जब इंशाल्लाह हम पर्सोना डेवलपमेंट की एक्सरसाइजेज वगैरह करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जरा इसका और जरा फर्क समझ में आएगा। अच्छा, ये थोड़ी सी डिस्कशन चल रही है। अम, क्या है ये क्वेश्चन? अच्छा चलो ठीक है, आई थिंक वी डोंट हैव एनफ टाइम। Sir, we also have Ibrahim Khan with his hand raised. जी जी, इब्राहिम बोले। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर काफ़ी अच्छा नॉलेज आप शेयर कर रहे हैं। बीच में एक क्वेश्चन आई गेस मूवीज का था कि हम डोर टू डोर नॉक तो नहीं कर सकते ना, लाइक हाँ हाँ, हर किसी का किस तरह। सो बिल्कुल। बेसिकली आई एम आल्सो करंटली डूइंग द सर्टिफिकेशन राइट नाउ। सो उसमें ये बताया था कि आई गेस इफ यू पिक अप 4 to 5% और मे बी लाइक 10% जितने आपका लाइक बजट है ना, अकॉर्डिंग टू योर बजट, जो आप प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हो अपने क्लाइंट के लिए। सो जी पिक 1% जिसका डिफरेंट बैकग्राउंड है। लाइक जी अगर एक बंदा है लाइक ही लाइज इन एज गैप ऑफ 15 to 20 years। सो अ हम्म, टीन, एक आप टीन ले लो, एक आप एडल्ट ले लो, एक आप लाइक ओल्डर एज का ले लो, और फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। लाइक सम कोई विलेज एरिया से है, कोई अर्बन एरिया से है, लाइक यू नो। सो इस तरह हम अगर डिवाइड करके कुछ हम कैंडिडेट्स ले लें और फिर हम उनसे यूज़र जो हमारा है प्रोडक्ट है वो टेस्ट कराएं, तो आई गेस उससे जी जी, हम गैदर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन के यूज़र की क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है आई बेहतरीन। गेस। जी जी, बेहतरीन इब्राहिम, वेरी वेरी थॉटफुल।
देखें इस पे मैं ये सर कोई आपकी इस पे लेना चाह रहा हूँ कि इज इट अ करेक्ट वे, और या इससे बेहतर हम जी किसी जी और ऐसा तरीके ही से कर होता है। सकते हैं? जी जी ऐसा ही होता है। ये जो सैम्पलिंग होती है ना, ये जो सर्वेज वगैरह होते हैं, आपको अक्सर नजर आता है कि यार आपको पता है एक सर्वेज बॉडीज हैं पाकिस्तान में ना, बहुत सारी जो मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर सर्वेस करती हैं। ठीक है, तो आपका क्या ख्याल है, वो पूरे पाकिस्तान के अंदर से लोगों से 8 सॉरी यार मेरा जरा गला खराब है, कोई 24 करोड़ लोगों से ये तो नहीं पूछती ना कि आपको कौन सी प्रोडक्ट पसंद है या कौन सी नहीं। वो एक सैंपल ही कलेक्ट करती हैं, और सैंपल के अंदर वेरिएशंस होनी चाहिए। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर आप अर्बन ऑडियंस को टारगेट करते हुए कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, या मैं अगर एग्जांपल दूं विंडशील्ड वाइपर की, तो हाँ गैलप फॉर एग्जांपल, थैंक यू। अगर मैं आपको विंडशील्ड वाइपर की एग्जांपल दूं तो उसके लिए सैंपल साइज बड़ा छोटा है। यानी कि वो लोग कि जो शहरों में रहते हैं, जिन्होंने ट्रॉलीज के ऊपर या बसों में या गाड़ियों में सफर किया हुआ है, आई मीन दैट पर्टिकुलर सैंपल साइज वुड बी मोर देन एनफ, राइट? सो बेस्ड अपॉन द यूज केस, या अगर मैंने किचन के लिए प्रोसेस इंप्रूवमेंट का यूजर एक्सपीरियंस बनाना है, जैसे उस बनाई थी उस साइकोलॉजिस्ट ने, सो यू वुड ओनली वांट टू सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू वो लोग के जिनका किचन के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है। मेरे जैसे बंदे जो कभी किचन में जाते ही नहीं है, उनसे इंटरव्यू करने करके आपने क्या करना है? तो अगेन बेस्ड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, बेस्ड अपॉन द प्रोडक्ट और द सर्विस और द ऑफरिंग दैट यू आर बिल्डिंग, अगर आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कि ज़रात से रिलेटेड है, तो आप देहातों में जाके ही करेंगे ना। या अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि ज़रात से मुतल्लिक है, लेकिन मंडी के अंदर आपके जो रॉ मटेरियल है, गंदों में आजकल उसकी कटाई हो रही है, उसको ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड आपने कोई सोल्यूशन बनाया है, तो फिर आप देहात में किसान से मिलेंगे और मंडी में उस आड़ती से मिलेंगे जिसने गंदम लेनी है, राइट? अगेन अगर आपने उस एक्सपीरियंस को इस तरीके से ट्रांसलेट करना है कि अच्छा यार, जो आटे की थैली है वो, या आटे की जो बोरी है वो एंड यूजर तक कैसे पहुंच रही है, तो फिर आप आड़ती या चक्की वाला जो कि आटा पीस रहा है, और एंड यूजर जो है, जो आटे का कंज्यूमर है, उसके उससे आप उन उन पर्सोना से आप क्वेश्चनियर लेंगे। सो अगेन इसको हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे सबसीक्वेंट सेशंस के अंदर, क्योंकि खाली ये समझना कि यूजर एक्सपीरियंस की डेफिनेशन वगैरह दैट्स नॉट गोइंग टू बी इनफ। बट वन ऑफ द की पॉइंट्स जो कि मैं आज डिस्कस करना चाहता था, वो मैंने सबसे आखिर में रखा हुआ, कि यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स टेक वर्सेस एक्सपीरियंस। अच्छा, मैंने ना नीचे अपनी तरफ से, और ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ जीपीटी, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बट आई वांटेड टू सॉर्ट ऑफ ओपन द फ्लोर फॉर ऑल ऑफ यू। अगर कोई बताना चाहे कि यार जब आपने अपना FYP कंसीव किया था, तो ऑनेस्टली बताएं कितने लोग थे जो ये फोकस कर रहे थे कि यार हाँ मेरी जो प्रोडक्ट है ना वो AR VR की होनी चाहिए। किसी ने कहा होगा हाँ मेरी जो प्रोडक्ट है ना वो IoT की होनी चाहिए। किसी ने सोचा होगा हाँ मेरी जो प्रोडक्ट है ना वो ब्लॉकचेन की होनी चाहिए। यानी कि टेक्नोलॉजी से सोल्यूशन की तरफ आए हैं कितने लोग हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपना अपना वो, अगर कोई नहीं है जिसने वाकई कोई यूजर स्पेसिफिक, जैसे हमारा एक कंपटीशन हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन जिसको हमने पहला प्राइज दिया था वो एक यूनिगो, आई थिंक द नेम ऑफ दैट प्रोजेक्ट, कि जिन्होंने एक्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर ट्रांसपोर्ट का एक मसला था उसको हल किया था। अगरचे कि उस तरह की एप्लीकेशंस पहले भी बनी हुई हैं, बट दैट वाज अ solution which was rooted in a problem that they experienced, और उसको हमने पहला प्राइज इसलिए दिया था कि दैट वाज बेसिकली अ यूजर सेंट्रिक और या यूजर ड्रिवन सॉल्यूशन दैट वाज बीइंग प्रपोज्ड। तो अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है कि जो जिसका फाइनल प्रोजेक्ट करना है या ये सोच रहा है कि वो करे यूजर स्पेसिफिक, जो कोई ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहे, तो रेज योर हैंड एंड देन लेट्स डिस्कस कि आप लोग क्या कर रहे हैं। जी सुंदस बोले। सर हम लोग बना रहे हैं एक राइड शेयरिंग एप्लीकेशन फॉर फीमेल्स, और उसमें यूजर सेंट्रिक हम लोगों ने ऐसे ही रखा था कि हम लोगों ने काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस की थी, लाइक हमारी जो बस की ट्रांसपोर्टेशन होती है उसके ज़रिए, और फीमेल्स
डिफरेंट मैंने अपने सर्कल में ऑब्जर्व किया कि काफ़ी लड़कियां जिनकी सर्जरीज हुई होती हैं वो बस से ट्रेवल नहीं कर सकती और डेली बेसिस पे उनका राइड्स करवा के आना जाना भी उनको मतलब फाइनेंशियली सूट नहीं कर रहा होता। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम एक ऐसा सोल्यूशन निकालते हैं जो कार पुलिंग बेस्ड हो, मतलब मंथली बेसिस पे, और उसमें एक बंदी जो मतलब डीएचए से रोजाना इस्लामिक या बहरिया या नमल किसी भी यूनिवर्सिटी में डेली बेसिस पे जा रही है, वो अपने साथ 2-3 बंदियों को ले जाए, उसी एरिया की बंदियों को। और इसमें जो यूजर साइड है, जो राइडर साइड है, उसमें उसको ये आसानी होगी कि वो अगर नहीं ट्रेवल कर सकती है राइड्स के जरिए, तो उसको एक पार्टनर भी मिल जाएगी जो कि इंटेलेक्चुअल लेवल भी काफी हद तक उनका सेम होगा, अच्छी कंपनी के साथ, फीमेल के साथ वो कंफर्टेबल भी होगी। और जो वेरी गुड। ड्राइवर है उसके लिए ये होगा कि अगर वो मिडिल क्लास फैमिली की है और उसके पास कोई छोटी गाड़ी है, तो वो अगर 10,000 20,000 पर मंथ पे उनको लेके जाती है और 2-3 बंदियां उसके पास, तो फिर वो कुछ टाइम बाद अपनी गाड़ी अपग्रेड भी कर सकती है, या फिर उसका डेली का जो फ्यूल एक्सपेंस है वो बच सकता है। तो हम लोगों ने इस चीज को बेहतरीन। माइंड में रखते हुए ये किया था। वेरी गुड, वेरी गुड। जी अब्दुल्ला, मोहम्मद अस्सलाम अब्दुल्ला वालेकुम। सुहेल। वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम। अच्छा सर, बेसिकली हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो हमने चूज किया था वो था एआई बेस्ड एक्सरसाइज मॉनिटरिंग सिस्टम ना। असल में ये हम्म आईओएस और एंड्रॉयड की ऐप थी। बेसिकली हम जो जो जिम्स में जाते हैं तो हमें एक अगर हमने हाई लेवल की वो जिम करनी होती है तो हमें ट्रेनर जरूरी होता है, वो हमारे एंगल्स ठीक करवाए और हमें सारी हम्म उसकी स्टडी दे। तो हमने कहा हम इसे बिल्कुल किसी तरह ना निकाल देते हैं ना, ट्रेनर को किसी तरह अगर ऐसे हो सकता है पॉसिबल ना। तो हमारी बैकग्राउंड एआई में था, तो हमने कहा व्हाई नॉट यूज एआई योलो का ये जो चल रहा है आजकल, मीडिया हम्म पाइप का ये जो हम्म सारा पोज एस्टिमेशन है। हमने ऐप बनाई थी, वो ये करते थे सामने हम मोबाइल रखते थे और अपनी एक्सरसाइज करते थे, पुशअप्स करते थे या हम कह सकते हैं डंबल को जो करते हैं बाइसेप्स और ये सब कुछ वो ट्रैक हम्म करता था और वो बताता था कि आपके मसल्स कितने एक्यूरेट आप कर रहे हैं ताकि कोई डैमेज ना हो, कोई इशू ना हो। तो हम एक्यूरेसी पे काम कर रहे थे, ये हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था और मेरे ख्याल से इससे बड़ा वेरी गुड। कॉज भी हो सकता, यूजर सेंट्रिक जी भी जी था बिल्कुल। और इससे बिल्कुल वो ट्रेनर वाला चीज साइड पे हो जाती है। तो ये था वेरी गुड, हमारा वेरी गुड। प्रोजेक्ट। अगेन इसकी इसकी इम्प्लीमेंटेशन में ऑब्वियसली आपको चैलेंजिंग आएंगे, बट एज लॉन्ग एज यू कीप द फोकस ऑन द फैक्ट कि जो बंदा एक्सरसाइज कर रहा है उसकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, रादर देन कि हमने बस जिसे कहते हैं ना घुसेड़नी है किसी ना किसी तरीके से एआई। एज लॉन्ग एज योर फोकस इज गोइंग टू बी ऑन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ दैट ट्रेनर, तो आई थिंक यू विल डेफिनेटली डू गुड। थोड़ा सा टाइम कम रह गया है बिल्कुल ही, बिकॉज आई हैव टू लीव, मैंने एक जगह पे खाने पे जाना है। तो मेरे नज़दीक, और अगेन जीपीटी के नज़दीक, बाय द वे मैं पता क्या करता हूँ जब भी कोई प्रेजेंटेशन तैयार करता हूँ, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइड ऑफ, क्या कहना चाहिए, एक टेक्निक है जो शायद आप लोग भी इस्तेमाल करते हैं। मल्टी मॉडल अप्रोच यूज़ किया करें। यानी कि एक मॉडल से आपने कहा कि यार जनरेट कंटेंट फॉर मी, फिर दूसरे को मॉडल को कहा, यानी कि जैमाने से जनरेट करवाया, जीपीटी को कहा कि यार इसको क्रिटिकली इवेलुएट करो, और फिर फर्ज करो ग्रॉक को कहा कि यार इन दोनों की जो आउटपुट्स को ना आप कंपेयर करो, तो आपके पास जो फाइनल एक सॉर्ट ऑफ आता है ना रिजल्ट, बड़ा अच्छा आता है। तो मैंने इसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एफवाईपी का जो एक फोकस होता है उसके अंदर जो चैलेंजेस हैं उसको मैंने लिस्ट डाउन करने की कोशिश की है, और कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं, और आप लोगों के सामने, आई थिंक यहाँ पे शायद एक दो टीचर्स भी हैं। लिस्ट डाउन करने का मकसद ये है कि नेक्स्ट टाइम जब आप लोग भी अपने एफआईपी के एडवाइजर्स वगैरह से बात करें तो आपको ये जहन में हो कि यार अच्छा हमने भी ना, मैंने भी ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन एज अ कोर्स पढ़ा था, लेकिन लिटरली उस वक्त क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी इतनी कि यूजर एक्सपीरियंस नाम की कोई चीज़ भी होती है, तो को बहुत ज़्यादा फोकस किया नहीं, लिटरली हम भूल भी गए कि हमने किया। तो रादर देन फोकसिंग ऑन दी एल्गोरिदम्स, आप में से, एंड आई डोंट वांट टू अंडरप्ले और डाउन प्ले द इम्पोर्टेंस ऑफ से कि जी कौन सॉर्टिंग के कितने यार एल्गोरिदम्स होते हैं। मुझे 25 साल हो गए हैं, मैं जब भी कोई लाइब्रेरी इस्तेमाल करता हूँ उसका बिल्ट इन सॉर्टिंग मैकेनिज्म इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है ना। मैंने कभी, मुझे नहीं याद पड़ता
कि अदर देन आफ्टर द यूनिवर्सिटी या कभी कभार इंटरव्यूज के लिए, उसके बाद मुझे बबल सॉर्ट या उस किसी दूसरे चीज़ें सॉर्टिंग के ना एल्गोरिथम्स को बहुत ज़्यादा डिटेल से समझने की जरूरत पड़ी हो। आई एम नॉट ट्राइंग टू डाउन प्ले द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ एल्गोरिथम्स वर्क, लेकिन यू एज प्रॉब्लम सॉल्वर्स, एल्गोरिथम इज जस्ट वन थिंग। सॉरी, सो मैं ये कह रहा हूँ कि यू एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर अपने आप को एलिवेट करें एक टिपिकल प्रोग्रामर से। अगर आप अपने आप को एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर सोचना शुरू करेंगे तो प्रोग्रामिंग या जो आपकी टेक स्किल है वो सिर्फ एक कंपोनेंट रह जाएगा, लाइक इट्स गोइंग टू बी ओनली 10 20 50 30% ऑफ योर ओवरऑल स्किल। तो मेरे ख्याल में जब आप करिकुलम के ऊपर खुद भी फोकस कर रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट के यूनिवर्सिटी के अंदर HCI इस तरह कोई खास कोर्स नहीं भी होता है, आप यूजर एक्सपीरियंस के ऊपर या इस चीज के ऊपर कि आप एक सर्विस दे रहे हैं या आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आपका जो यूजर है एज अ कंज्यूमर ऑफ योर सर्विस, वो आपकी सर्विस से कितना खुश है। मैं अगेन ये कहूंगा, मैंने शायद पहले भी एक दो दफा एग्जांपल दी है, डजंट आई डोंट फील प्राइड इन द फैक्ट दैट आई failed my coding interview in Microsoft. And I repeat, I failed my coding interview into the Microsoft, लेकिन I was still able to land a job because I was able to sell myself. I was able to make them understand कि I can be a valuable asset to your organization from a services perspective. I was able to present myself as someone who could sell his services to them. ठीक है, तो ये जो एक अनड्यू फोकस है ना ऑन टेक्स, अगेन विद द एडवेंट ऑफ AI, अब तो आपको, मैं अगेन आई डोंट वांट टू डाउन प्ले द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्सेप्ट्स आपको जरूर होने चाहिए। न्यूक्लियर फ्यूजन वगैरह के अंदर भी जो फंडामेंटल्स है ना वो फिजिक्स के, वो बहुत सिंपल है। ये क्वांटम फिजिक्स तो फलां तो ये तो वो पार्टिकल फिजिक्स बहुत सिंपल है अगर आपको फंडामेंटल्स आते हैं, राइट। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि without downplaying the importance of की प्रोग्रामिंग स्किल्स या एल्गोरिदम्स की कॉम्प्लेक्सिटी और इस तरह की सारी चीज़ों को ज़रूर पढ़ें, ज़रूर अंडरस्टैंड करें, लेकिन ये सारी की सारी आपकी ओवरऑल स्किल सेट का शायद 20 से 30% ही बनाती हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ और चीज़ें जो मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन की हैं, उसमें यह है कि हमारा जो असेसमेंट क्राइटेरिया है, ठीक है, वो भी टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक होता है, उसके अंदर सॉफ्ट स्किल्स का बहुत ज़्यादा अमल दखल नहीं होता। ठीक है, और मेरे ख्याल में कि जी आपकी प्रोडक्ट सोल्यूशन या यूजर का क्या मसला हल कर रही है उसके ऊपर तो बहुत कम फोकस होता है। और फ्रॉम अ स्टूडेंट परस्पेक्टिव भी मेरा एक, हमारा जो ETL का हमने एक फिजिकल प्रोग्राम आज से कुछ अर्सा पहले जब स्टार्ट किया था, तो एक लड़का आया हमारे पास, कहता है जी मैंने लारावेल सीखनी है। हाँ, यानी कि ये मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुमने लारावेल ही क्यों सीखनी है, तो कहता है मेरे टीचर कहते हैं कि जी उसके ना आजकल जॉब्स बहुत ज़्यादा है। सो स्टॉप फोकसिंग ऑन टेक, या स्टॉप फोकसिंग ऑन कि जी मैंने रिएक्ट सीखनी है, मैंने व्यू सीखनी है। बीइंग एन इंजीनियर यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है, एंड इफ यू व्यू योरसेल्फ एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर तो फिर यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉर द प्रॉब्लम्स दैट यू वांट टू सॉल्व। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने प्रॉब्लम को डिफाइन कैसे करना है। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट जरा गौर से पढ़िएगा कि स्टूडेंट्स ऑफन डिफाइन द प्रॉब्लम इन टेक्निकल टर्म्स, ठीक है ना, हाउ टू बिल्ड अ सिस्टम दैट डज एक्स। ठीक है, अब वो एक ही चीज को बोलने का दो डिफरेंट तरीका है, राइट। अगर आप उसी सेंटेंस को इस तरीके से कह देंगे ना, हाउ टू हेल्प यूजर वाई अचीव गोल जी मोर इफेक्टिवली, आपकी सारी की सारी ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है। ठीक है, अगेन कुछ और फैक्टर्स भी हैं, आई विल नॉट बेसिकली इंडल्ज ऑन दोज, आई रियली हैव टू गो, बट द फोकस वाज कि मैं कोशिश करूं कि एक आप लोगों के अंदर इंटरेस्ट पैदा करूं कि यार यूजर एक्सपीरियंस जिसको बहुत आसानी से यूजर इंटरफेस के साथ क्लब कर दिया जाता है, इसके साथ, यानी कि इस तस्वीर को, ये वाली जो तस्वीर है इसको बड़े आराम से इसके साथ क्लब कर दिया जाता है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, UI इज जस्ट पार्ट ऑफ द इंटायर यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है ना।
एंड इफ आई वाज टू गिव वेटेज तो शायद यूआई जो है वो 40% है ऑफ द इंटायर यूजर एक्सपीरियंस, या मे बी इवन 50%, बट नॉट मोर देन दैट। ठीक है जी। अगेन थैंक यू फॉर कमिंग, आई रियली हैव टू गो। अगर कोई क्वेश्चन है तो यू गाइस कैन सॉर्ट ऑफ आस्क ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप्स या चैनल्स। अगेन मुताहिर जो भी आपकी फाइनल पार्टिंग रिमार्क्स होते हैं वो दे दें। वी विल कंटिन्यू टू हैव दिस सेशंस ऑन द यूजर एक्सपीरियंस थिंग। नेक्स्ट सेशन कब होगा इट डिपेंड्स अपॉन ऑब्वियसली द अवेलेबिलिटी एंड जो हमारा स्केड्यूल चल रहा है। कुछ हमारे बड़े अच्छे सेशंस इंशाल्लाह एआई वगैरह के ऊपर भी आने लगे हैं, तो विल ट्राई टू सॉर्ट ऑफ स्क्वीज इन द फॉलो अप सेशन ऑफ यूजर एक्सपीरियंस सून इनफ इंशाल्लाह। ठीक है जी। Ji sir, thank you so much for having us, and thank you so much for giving us your time, and to our students as well. Thank you so much for participating tonight. और inshallah we'll bring more UX sessions. मैंने feedback form share किया था. Kindly fill that out. I'll share the link again. और उसी feedback form में you'll find the link to our Linktree and our website. और वहाँ से you'll have access to all our resources on YouTube, LinkedIn, and our community portal जहाँ पे आप अपने सारे questions पूछ सकते हैं. And Sir Irfan personally will answer you on the community portal as well. जी इंशाल्लाह I'll try my best इंशाल्लाह। Once again, thank you so much everyone for joining.